प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को भारत की वायु और थल सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। इसी बीच इस कार्रवाई को लेकर कर्नाटक के हुबली में लोगों में खुशी दिखी। हुबली में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना के इस कदम की सराहना की। ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತ ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಸೈನಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:00 ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಯಾವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು, ನಾಗರಿಕರು, ಸರ್ಕಾರ ಮಲಗಿದಾಗ 9 ಕಡೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಧೂರ್ 26 ಇವತ್ತು ಜನರ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ಅಳಿಸದಂತ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ಅಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 78 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಂಧೂರನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರನ್ನ ಅಳಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ISI ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಯುಧ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ವೆಪನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. ಭಾರತವನ್ನ ಬೆರಳೆತ್ತು ನೋಡು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ 2 ದಾಳಿಗಳು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಜೈಷೆ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಆಗಿದಂತಹ ದೇಶದ ಅವನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮದರ್ಸಾ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. 100 ಜನ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಉಗ್ರನ್ ಸದೆ ಬಿಡೋದು ಸದೆ ಬಿಡೋ ಬದಲು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಿರ್ವೀರ್ಯತನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡುತನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಗಾಂಧಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು? ಈಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾನಸಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿಜಡ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ವೀರ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ और वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सशस्त्र बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कहा कि देश अपने बहादुर सैनिकों के साथ है। भारत की वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के ऊपर आतंकी हमला का जवाब आज रात को दे दिया। पीओके यानी पाकिस्तान के जो 9 स्थान है जो आतंकी अड्डा था उसके ऊपर हमला करते हुए सफल पूर्वक और अड्डा को ध्वंस करते हुए आतंकवादी को निपात कर दिए। जो ऑपरेशन सिंदूर था, सिंदूर हमारा त्याग और संकल्प और प्रतीक का ये रूप है। इसी आधार पर आज हमारा जवानों ने जो कदम उठाई, निश्चित रूप से अगले दिन में भी जीरो टॉलरेंस नीति अपना होते हुए निश्चित रूप से सारा विश्व भर में जो आतंकी आज फैला हुआ है उसके ऊपर भारत नेतृत्व में निश्चित रूप से सफाई किया जाएगा और आतंकवादी को निपात किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस कर दिया है और इस कार्रवाई से बिहार के दरभंगा में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरभंगा में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर इस पल का स्वागत किया है। ये हमला सिर्फ ये चेतावनी है कि भारत पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से उखाड़ के फेंकने की आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री मिथिला की धरती से संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ देश का हर वर्ग, हर युवा, हर बच्चा आपके साथ है। आपको जो भी एक्शन लेना है लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा यहाँ पर खून से लेकर हम लोग अपना सारा चीज देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार है। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में वो एकदम निंदनीय है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। एक आदमी है, सभी आप देख लीजिए, सभी यहाँ बच्चे हैं जो प्रशिक्षण करते हैं आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सभी लोग साथ हैं। जरूरत पड़ा तो एक अपना कतरा देश के लिए लुटा देंगे। ये पहलगाम में जिस तरह से महिलाओं के सामने उसके पति को मारा गया, उसका मोदी जी ने आज करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने स्ट्राइक का भी नाम जो है सिंदूर ऑपरेशन रखा है। उसी के खुशी में आज हम लोग जितने भी युवा हैं, बहनें हैं, सभी लोग ने पटाखा फोड़ के और गुलारा लगा के सभी खुशियां मना रहे हैं। क्या नाम है? प्रदीप से। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, अभी और होना बाकी है। जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने ये बयान दिया कि हम लोग परमाणु अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भारत की आर्मी ने बता दिया कि आतंकी के जहां जहां ठिकाने हैं पाकिस्तान के घर में घुस के इंडियन आर्मी उसको तबाह करने का ताकत रखती है। अभी 90 से ज्यादा आतंकवादी यहाँ पे मरे हैं और पाकिस्तान का कब्रिस्तान होना बाकी है। सौरभ, देखिए, ये शुरू से ही रहा कि जिसने भारत के ऊपर उंगली उठाया उसका हाथ काट लिया गया, आंख दिखाया उसका आंख निकाल लिया गया। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकियों ने पाकिस्तान का भेजा गया दूत, इस्लामिक आतंकवाद, धर्म विरोधी, ये जिस प्रकार निर्दय होकर और धर्म पूछकर गोली चलाया था, जिसमें 25 से 30 सनातनी बंधुओं का हत्या कर मृत्यु हो गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कल रात्रि में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नाश किया, उसी के उपलक्ष्य में आज दरभंगा जिला में हम सभी भारतीय युवा और मातृशक्ति मिलकर एक उत्साह व्यक्त किए हैं, खुशी व्यक्त किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को बल देने का प्रयास किए हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़े चले, हम सब आपके साथ हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के हर कोने से आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं
कि आप मोदी जी थोड़ा सा भी पैर पीछे मत कीजिए। देश के हर एक युवा, हर एक युवती आपके लिए और देश के लिए हमेशा खड़ा है, और देश के ऊपर गंदे नियत करने वाले और आंख दिखाने वाले को आंख निकालने के लिए लोग तैयार है। जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी वर्दी ही चाहिए, आप एक बार हुक्म करें, हम सब मैदान में रहेंगे। दूसरा, आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के बाहर तो दुश्मन का औकात पता चल ही रहा है। जितना वो आग और बबूला हो रहा था उसकी औकात मिट रही है, और भारत में रहकर जो देश विरोधी, धर्म विरोधी आतंकवादी बैठा हुआ है, मैं उसे भी कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ दो। समय आ गया, अब हिंदुओं सोना खरीदना बंद करो, सोना बेचकर लोहा खरीदना शुरू करो और घर की जंग की तैयारी शुरू करो, क्योंकि देश विरोधी, धर्म विरोधी बाहर तो दिख रहा है और आपके घर में भी बैठा है। वैसे लोग को भी चिन्हित करके हम लोग को नाश करना है। राजीव प्रकाश मधुकर। देख रही हो, क्या चाहती हो बताओ, क्या चाहती हो? और होना चाहिए, और होना चाहिए, घर में घुस के मारना चाहिए। ठीक है, मोदी जी में विश्वास है, हो जाएगा, घुस के मारेंगे, वो लोग मारेंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस एयर स्ट्राइक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर, भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है, और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूं। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बिल्डिंग में आग लगने और हताहत होने पर किस तरह आग बुझानी है और घायलों को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक पहुंचाने को लेकर ये मॉक ड्रिल किया गया। देखिए, आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें हमें लगभग 12:10 में सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला चिकित्सालय के पीछे कैंपस है, वहाँ पे कुछ पेशेंट्स थे, वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ है। उस सूचना प्राप्त होते ही जो हमारा पूरा इमरजेंसी सिस्टम है उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पे फायर की टीम आई, तत्काल जो आग लगी थी उनको बुझाया गया। इसमें 9 लोग घायल थे, जो हमारी एम्बुलेंसेज है वो तत्काल पहुंची थी। सभी जो घायल व्यक्ति थे उनको जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। यहाँ पे हमें जो आशंका है अभी वो बम विस्फोट की है, तो हमारी जो बम डिस्पोजल टीम्स हैं उनसे संपर्क किया गया है। पूरे कैंपस का हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकी इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं लखीमपुर खीरी में भी पुलिस लाइन ग्राउंड में स्कूली बच्चों को आपातकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई।
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मॉक ड्रिल आयोजित किए जाएं। तो आज इसकी शुरुआत यहाँ पुलिस लाइन में की गई है। एक आपदा वाली सिचुएशन क्रिएट की गई है, एक मॉक एक्सरसाइज जिसमें पुलिस लाइन की एक बिल्डिंग पे हमला हुआ, कैसे 10 मिनट के अंदर यहाँ फायर की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ पहुंची, लोगों को समय अंतर्गत इवैक्यूएट करके उनको अस्पताल पहुंचाया गया और बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया गया, आग को बुझाया गया। ये पूरी एक्सरसाइज को 10 मिनट में किया गया, बखूबी किया गया और इसमें और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग GIC मैदान में जाएंगे, वहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि अगर कुछ इस तरह की आपदा आती है, इस तरह का हादसा हो जाता है, कोई हमला हो जाता है या कोई भी इस तरह की घटना होती है, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और फिर अपने घर वालों की, अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कैसे करनी है। जिला तैयार है और सुधार किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई भी कमी पेशी है उसको भी पूरा किया जाए। देखिए, इंडो नेपाल बॉर्डर का जो एरिया है वो काफी हद तक नदी से डिवाइडेड है। तो जो नदी का उस पार का हिस्सा है वो नेपाल है और इस पार का हिस्सा इंडिया है। तो वो एक नेचुरल बाउंड्री है एक तरीके से। और जहां जहां सर्वे के जो पिलर्स मिसिंग हैं उनके लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि दोनों देशों की टीम आकर के सर्वे के पिलर्स को स्थापित करें। अभी हाल में ही हमने इंडो नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है जिसमें हमने आइडियाज एक्सचेंज किए हैं, वार्तालाप किया है कि कैसे इस मूवमेंट को सुगम बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, इसमें ड्रग्स, क्रिमिनल्स, नारकोटिक्स, इसके मूवमेंट पे नियंत्रण पाया जाए और कैसे अपने अपने बॉर्डर्स को सेफ और सिक्योर किया जाए। बिजनौर में भी युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा हवाई हमलों से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में आम नागरिकों को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई और उन्हें ऐसे हालात में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मॉक ड्रिल शहर के प्रमुख स्थानों के साथ साथ तहसील स्तर पर भी आयोजित की गई। जिसमें कि लोगों को एयर रेड वार्निंग सिस्टम की जानकारी दी गई। इसमें ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रहा है, सभी तहसीलों, सभी क्षेत्रों में हो रहा है। जिसमें जिलाधिकारी महोदय और मैं यहाँ पर SRS मॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सायरन बजा के पहले जो है लोगों को एयर रेड वार्निंग सिस्टम के विषय में जानकारी दी गई कि कैसे उसमें डाटा आप बचेंगे। उस समय तत्काल जो है अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को साइड में कर लें, आप तत्काल रुक जाएं। आप जो है गेरेज की बिल्डिंग को उसमें उसके वॉल का शेल्टर ले लेंगे, अगर आप जो ग्राउंड का शेल्टर ले लें। और फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग में बेसमेंट है तो यहाँ पर आप ये जो है एक सेफ प्लेस है, तो इस प्रकार की जो भी जगह है वहाँ पर आप शेल्टर ले लें। और जिस समय सायरन बंद होता है तो उसका अर्थ ये होता है कि रेड समाप्त होगी, उसके बाद जो है इसके अलावा फायर सेफ्टी की भी इसमें जो है ड्रिल की गई है। इसके अलावा सभी जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी मामूली सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उसमें पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों को जो है इस पूरे जो प्रिकॉशनरी है क्या आपको कार्यक्रम क्या करें क्या लोगों को मिनिस्ट्री के निर्देश में आज उन्होंने जनपद बिजनौर में कई स्थलों पर मॉक ड्रिल भी कराए। 11 बजे सायरन बजा के हम लोगों ने यहाँ सिटी में SRS मॉल पर और साथ ही साथ हमारी सभी तहसीलों में जो मुख्य स्थल है हमारे SDMCOs के माध्यम से मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। साथ ही साथ शाम को 8 बजे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मेरा आप सब लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि सब लोग इसमें भागीदारी जरूर करें। केवल एक प्रिपेयर्डनेस है, जब ये ऐसी परिस्थिति होती है तो उस समय आपको क्या करना है इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए और आपके स्तर से, आपके माध्यम से हर किसी के घर में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि आज 8 बजे जब सायरन बजेगा, जब गाड़ियों के हूटर बजेंगे तो एक तरह से अनाउंसमेंट होगी 8 बजे की, तो सभी लोग अपने घर की या अपने दुकानों की या अगर गाड़ी में है तो अपनी गाड़ियों की लाइट जो है वो बंद कर देंगे और बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएंगी। और जब सायरन दोबारा रिपीट होगा तब जो है नॉर्मल अपनी रूटीन में आएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से अनुरोध भी है और साथ में ये भी है कि किसी भी प्रकार के रूमर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और अन्य माध्यमों से सर्कुलेट हो रहे हैं, उन रूमर्स पे कोई विश्वास ना करें। हमेशा पुलिस प्रशासन से जरूर वेरीफाई करा लें। ऐसी कोई डर वाली स्थिति सच नहीं है, बट ये हम लोगों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए, हम लोगों को एज ए सिटीजन क्या तैयारी करनी चाहिए, उसी के संबंध बैंक के सायरन है और दूसरे सायरन है, और इस सायरन में क्या अंतर होगा, कैसा आइडेंटिफिकेशन करेंगे? आज अभी 11 बजे तो हम लोगों ने सायरन का फॉर्मेट रखा था, और क्योंकि अभी सायरन भरपूर
हमारे ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है। हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं अपने अधिकारियों में, सभी बिल्डिंग्स में भी जहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम मिलता है वैसा सर्कुलेट कर रहे हैं। परंतु जहाँ नहीं पहुँच पाता, सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो हमारी जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, हमारी नगर पालिकाओं की गाड़ियाँ हैं, उनमें जो रूटर का सिस्टम है उनके माध्यम से आज हम लोग प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि देर रात चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया तो युवक पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस ने 18,000 के रुपए और अवैध तमंचा बरामद किए और फरार बदमाश की तलाश जारी है। आज हापुड़ नगर क्षेत्र के अंतर्गत आनंद विहार में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक को रुकने का इशारा किया तो बाइक पर 2 युवक सवार थे, तो एक युवक उनमें से मिल गया, दूसरा युवक बाइक को लेकर भाग गया। जब पूछताछ गहराई से की गई तो पता लगा कि हापुड़ नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो 29/4/2025 को जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी वो एक दोनों अभियुक्तों ने कारण की थी, जो आज अपनी R15 इनको जिसको इसने कहीं छिपा दिया था उसको लेने के लिए आए थे। तो जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम अंकित राठी पुत्र राजीव राठी निवासी सिंहावली का है, और इसका दूसरा अभियुक्त जो इसका साथी था उसका नाम अमित उर्फ सरदार जो कि भाग गया है। आज 9 बजे के करीब इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में इनकी निशानदेही पर इन्होंने बताया कि इन्होंने बाइक को कहीं छिपा दिया है, तो उसको बरामद करने के लिए पुलिस पार्टी के साथ आई थी। तो अभियुक्त को जब लेके आए तो अभियुक्त ने अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाने के बहाने उसमें से तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें एक सिपाही को मामूली चोट लगी है। और जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग जब हुई तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, और दोनों को जो अपना कॉन्स्टेबल है उन लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, और जिससे कि फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इनके अभियुक्त से एक बाइक R1 जो घटना में प्रयोग हुई थी, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस, एक हुक्का कारतूस बरामद हुआ है, और इसके पास से 18,000 रुपये नकदी भी बरामद हुई है, जो कि इसने बताया कि जो उसके जो चैन थी जो उसका दूसरा साथी लेके चला गया था उसके हिस्से में 18। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन सड़क हादसों से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच सोनभद्र जिले में फिर एक बार सड़क हादसा का मंजर देखने को मिला। भबनी आसानडी मार्ग पर पिपरा खाट पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में 2 को बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बिजनौर के धामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कोर्ट के आदेश के बावजूद एक विधवा महिला को उसके ही ससुराल वालों ने जबरन घर से निकाल दिया। पीड़िता रेशमा खातून का आरोप है कि स्थानीय पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। रेशमा ने बताया कि उसकी देवरानी, जो उसकी सगी बहन भी है, और अन्य परिजनों ने मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है। न्यायालय के आदेश पर एलए कमीशन और तहसील अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें कब्जा दिलाया गया, लेकिन अधिकारियों के जाते ही परिजनों ने फिर से जबरन कब्जा कर लिया। रेशमा ने परिजन पर मारपीट का भी आरोप लगाया है, साथ ही सुरक्षा की मांग करते हुए मकान का कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम रेशमा खातून है, मैं मोहल्ला महसराय की रहने वाली हूँ। मैं यहीं पे रहती हूँ और मेरी दौरानी है नरगिस में, यानी कि वो अपना आपको बहन भी बताती है और दौरानी है। उसने मुझे घर से मार के निकाल दिया है और मैं यहीं पे 15 साल से रहती हूँ। और मेरी सास जो है वो बोलती है कि सबका हक है। जब सबका हक है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे शोहर ने भी
तो मुझे यहाँ से मार के क्यों निकाला जा रहा है? मैं पुलिस की शिकायत लेके जाती हूँ तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते और मुझे बोलते हैं कि अपने घर जाओ। घर कहाँ जाओ? जो लोग मुझे मारपीट कर रहे हैं। 8 साल से मेरे साथ यही कहानी चली आ रही थी। मैं दवाई लेने के लिए चली गई थी, मेरी दुकान के ताले तोड़ दिए और उन्होंने दुकानों में अपने ताले डाल दिए। अब बताइए क्या करूँ? आपने थाने में तहरीर दी है? जी हाँ, थाने में तहरीर दी है मैंने। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का ये कहना है कि घर जाओ। मैं घर कहाँ जाऊँ? ये लोगों ने गेट बंद कर लिया अंदर से और गेट खोल ही नहीं रहे हैं। 112 नंबर की पुलिस आई थी तो उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे थे और गालियाँ दे रहे थे कि जो भी यहाँ पुलिस वाला आएगा हम उसकी न्यूज बनाएंगे, उसकी न्यूज में डालेंगे, वीडियो बनाएंगे। जो भी आता है घर पे उसकी ही ये लोग वीडियो बनाते हैं। मैं सिलाई का काम करती हूँ और सिलाई करके खाती हूँ। मेरी एक लड़की है, लड़की घर के अंदर रह गई है। पर उन आप क्या चाहती हो? मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ हो और मुझे मेरा हक मिले। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।